In this video, I'm going to discuss the characteristics of phylum Porifera in detail. So keep watching this video till end for better preparation. लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे दरख्वास्त है कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और साथ ही मौजूद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि इस तरह की लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आगे भी मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की वीडियो। First of all, outermost layer of sponges is pinacoderm and it is composed of pinacocyte cells. Number 2, innermost layer of sponges is composed of guanocytes and it is known as guanoderm. Number 3, mesohyl or mesoglia is present between pinacocytes as well as guanocytes. Number 4, mesoglia contains amoebocytes as well as skeletal structure, and these skeletal structures are present in the form of spicules. Spicules is a pointed sharp structure. Number 6, these spicules are calcareous, siliceous as well as spongian fibers. These are the three different forms of spicules in case of Porifera. Number 7, archaeocytes in phylum Porifera are actually amoebocytes structures. Archaeocytes are the reproductive cells in case of phylum Porifera. Number 8, reaction to the stimulus or local and independent nervous system is absent in phylum Porifera, and the reaction to the stimulus is very rare as well as local and independent. Number 9, respiration and digestion occurs by diffusion from the body surface. इनके अंदर जो रेस्पिरेशन और डिफ्यूजन होती है वो किसके थ्रू होती है? बॉडी सरफेस के थ्रू होती है। इसके बाद नेक्स्ट है 10, नर्वस सिस्टम इज एब्सेंट इन केस ऑफ फाइलम पोरीफेरा। इसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं नंबर 11, ingestion in phylum Porifera takes place by which structure? Guanocyte cells. Number 12, budding and fragmentation occurs by regeneration. इनके अंदर जो budding का प्रोसेस है और regeneration का प्रोसेस है, fragmentation का प्रोसेस है, ये किसके थ्रू होता है? By the process of regeneration. इसके बाद नंबर 13, asconite type canal system is present in leukocylia. So it is very important from the examination point of view. Number 14, Syconite type of canal system is present in Scypha. Scypha contain Syconite type of canal system. Number 15, flagellated canals of Sycon type are lined by which cells? So these are guanocyte cells which line the flagellated canals of Sycon type of canal system. Number 15, incurrent canals and spongiocole are lined by pinacocytes. incurrent canals के अंदर और spongiocole के अंदर जो cells होती हैं वो कौन से होते हैं? pinacocytes. इसके बाद है 16, flagellated canals have pores called as prosopyle. Prosopiles are the pores present in flagellated canals of phylum Porifera. Question 17, water from the flagellated canals enter into the spongiocele by means of apopyle. By which mean? Apopyle is the process through which. Number 15, flagellated canals of Sycon type are lined by which cells? So these are guanocyte cells which are present in flagellated canals. Number 15, incurrent canals and spongiocole are lined by which cells? These are pinacocytes. तो ये आपने डिफरेंस याद रखना है कि flagellated canals के अंदर guanocytes present होती हैं जबकि incurrent canal और spongiocole के अंदर pinacocytes मौजूद होते हैं। Number 16, flagellated canals have pores called as prosopyle. कि flagellated canals के अंदर जो pores होते हैं उनका क्या नाम होता है? वो prosopyle कहलाते हैं। Number 17, water from the flagellated canals enter into the spongiocole by means of apopyle.
तो ये एपोपाइल भी इम्पॉर्टेंट है कि एपोपाइल्स वो ओपनिंग है जिसके थ्रू फ्लैजिलेटेड कैनाल से वाटर इंटर होता है किसके अंदर, स्पॉन्जोसील के या स्पॉन्जोकोल के अंदर। नंबर 18, वाटर इज टेकन आउटसाइड द बॉडी ऑफ स्पंजेस बाय मीन्स ऑफ अस्कुलम। तो अस्कुलम वो ओपनिंग है जिसके थ्रू वाटर आउटसाइड द बॉडी मूव करता है। नंबर 19, सम साइकोन टाइप हैविंग डर्मल कार्टिक्स। तो ये डर्मल कार्टिक एक आउटर मोस्ट लेयर होती है मेड ऑफ पिनेकोसाइट्स, मीजोहाइल एज वेल एज स्पेक्यूल्स। तो इसकी कंपोजिशन इंपॉर्टेंट है कि डर्मल कार्टिक्स किस चीज़ से मिलकर बना होता है, पिनेकोसाइट्स एज वेल एज मीजोहाइल एंड स्पेक्यूल्स। तो ये तीन चीज़ें हैं जो डर्मल कार्टिक्स के अंदर प्रेजेंट होती हैं। इसके बाद 20, रेडियल कैनाल्स आर कवर्ड बाय मीन्स ऑफ डर्मल कार्टिक्स। के रेडियल कैनाल्स जो है वो इसके अंदर जो प्रेजेंट होती हैं वाटर कैनाल सिस्टम के अंदर, वो किससे कवर की जाती हैं, डर्मल कार्टिक्स से। सो डर्मल कार्टिक्स इज अगेन प्रेजेंट आउटसाइड द रेडियल कैनाल। नंबर 21, ल्यूकोनाइड टाइप कैनाल सिस्टम इज प्रेजेंट इन स्पॉन्जिला एंड यूरीफाइलोअस। के यूरीफाइलोअस और स्पॉन्जिला वो दो ऑर्गेनिजम्स हैं जिसके अंदर ल्यूकोनाइड टाइप कैनाल सिस्टम प्रेजेंट होता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, एग्जांपल्स अक्सर ये एग्ज़ाम्स में पूछी जाती हैं। इसके बाद नंबर 22, स्पॉन्जोकोल इज रिड्यूस्ड इन साइज इन ल्यूकोनाइड टाइप ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ फ्लैजिलेटेड चैम्बर। कि स्पॉन्जोकोल जो है ल्यूकोनाइड टाइप के अंदर रिड्यूस क्यों होती है साइज़ के अंदर, तो उसकी वजह ये है कि स्पॉन्जोकोल ल्यूकोनाइड टाइप के अंदर फ्लैजिलेटेड चैम्बर्स प्रेजेंट होती हैं। इन फ्लैजिलेटेड चैम्बर्स के बनने की वजह से जो स्पॉन्जोकोल होती है वो साइज़ में रिड्यूस हो जाती है। इसके बाद नंबर 23, फ्लैजिलेटेड चैम्बर ऑफ ल्यूकोनाइड टाइप इज़ कॉल्ड एक्स करंट कैनाल। कि ल्यूकोनाइड टाइप के अंदर जो फ्लैजिलेटेड चैम्बर्स हैं उनका एक दूसरा नाम भी है कि वो क्या कहलाते हैं, एक्स करंट कैनाल कहलाते हैं। नंबर 24, when flagellated chambers communicate with excurrent canals by means of narrow canal called as एफोर्डस। तो ये एफोर्डस भी इम्पॉर्टेंट है कि फ्लैजिलेटेड चैम्बर्स एक्सकरेंट कैनाल्स के साथ कम्युनिकेट किसके थ्रू करते हैं, एफोर्डस के थ्रू। ये एक स्ट्रक्चर है जो कि कनेक्टिंग लिंक का काम करती है। नंबर 25, कैनाल्स विच कनेक्ट इनकरेंट कैनाल्स टू द फ्लैजिलेटेड चैम्बर इज़ कॉल्ड प्रोसोडस। तो ये प्रोसोडस और एफोडस का डिफरेंस आपने याद रखना है कि एफोडस जो था वो फ्लैजिलेटेड चैम्बर्स और एक्सकरेंट कैनाल्स के इन बिटवीन था, जबकि जो प्रोसोडस है ये इनकरेंट कैनाल्स और फ्लैजिलेटेड कैनाल्स के दरमियान कनेक्टिंग लिंक का क्या करता है, काम करते हैं। नंबर 26, रैगून टाइप कैनाल सिस्टम इज़ प्रेजेंट इन लार्वी एंड कॉनिकल इन शेप। कि लार्वी के अंदर कौन सा वाटर कैनाल सिस्टम प्रेजेंट होता है, रैगून टाइप वाटर कैनाल सिस्टम, और उसकी शेप कौन सी होती है, कॉनिकल शेप। नंबर 27, पिनेकोसाइट्स आर लार्ज थिन फ्लैट सेल्स ऑफ टी शेप। तो पिनेकोसाइट सेल्स की शेप क्या होती है कि वो टी शेप के होते हैं, लार्ज होते हैं, थिन और फ्लैट सेल्स होते हैं। नंबर 28, पिनेकोसाइट्स आर कनेक्टेड with each other by means of porocytes. Porocytes are the cells which are connecting the pinacocytes with each other. Number 29, excurrent canals of leuconide type lined by pinacocytes. कि ल्यूकोनाइड टाइप के अंदर जो एक्सकरेंट कैनाल्स होती हैं उनके अंदर कौन से सेल्स प्रेजेंट होते हैं, पिनेकोसाइट सेल्स। नंबर 30, size of animal body can increase decrease due to pinacocytes. पिनेकोसाइट्स वो सेल्स हैं जिनकी वजह से स्पॉन्ज की बॉडी का साइज़ कम या ज़्यादा हो सकता है, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट है। 31, पिनेकोसाइट्स गिव्स राइज टू विच सेल्स, मॉडिफाइड मायोसाइट्स। कि पिनेकोसाइट से कौन से सेल्स बनते हैं, मॉडिफाइड मायोसाइट सेल्स आर फॉर्म्ड। नंबर 31, पिनेकोसाइट्स गिव्स राइज टू मॉडिफाइड मायोसाइट्स। तो एक इम्पॉर्टेंट है कि पिनेकोसाइट से कौन से सेल बनते हैं,
modified myocyte cells. Number 32, वाटर करंट इज़ रेगुलेटेड बाय मीन्स ऑफ पिनेकोसाइट्स के वो कौन से सेल्स हैं जो वाटर करंट को रेगुलेट करते हैं? तो पिनेकोसाइट्स आर द सेल्स विच रेगुलेट द वाटर करंट्स. 33, पोरोसाइट्स आर मोडिफाइड अमेबोसाइट्स के पोरोसाइट्स जो कि पिनेकोसाइट सेल्स को आपस में कनेक्ट करते हैं वो एक्चुअली क्या होते हैं? मोडिफाइड अमेबोसाइट सेल्स होते हैं. नंबर 34, ग्लास स्पंज हैव सेंसिशियल पिनेकोडर्म कि ग्लास स्पंज के अंदर जो पिनेकोडर्म होती है वो कौन सी होती है? सेंसिशियल होती है, सेलुलर नहीं होती. नंबर 35, सेंसिशियल लेयर इज़ आल्सो कॉल्ड एज ट्रेबेक्युलर रेटिकुलम. तो ट्रेबेक्युलर रेटिकुलम सेंसिशियल पिनेकोडर्म का दूसरा नाम है और ये किसके अंदर प्रेजेंट होती है? ग्लास स्पंज के अंदर प्रेजेंट होती है. तो ये आपने याद रखना है. नंबर 36, अमेबोसाइट्स आर थीरोसाइट्स. अब ये भी एक नई टर्म आपने माइंड में रखनी है कि जो अमेबोसाइट्स हैं वो बेसिकली क्या हैं? मॉडिफाइड थीरोसाइट्स सेल्स. नंबर 37, क्वानोसाइट्स कंटेन पिगमेंट्स फॉर कलरेशन. अब ये भी आ सकता है कि वो कौन से सेल्स हैं जिसके अंदर पिगमेंट्स होते हैं कलरेशन के लिए. तो इसके जो इम्पॉर्टेंट है वो क्या है? क्वानोसाइट्स आर द सेल्स विच कंटेन पिगमेंट्स फॉर कलरेशन ऑफ द बॉडी. 38, स्क्लेरोसाइट्स आर कैल्कोसाइट्स एंड सिलियोसाइट्स ऑन द बेसिस ऑफ स्केलेटन कि अगर स्केलेटन की बेस पर देखा जाए तो स्क्लेरोसाइट्स की दो टाइप्स हैं, एक है कैल्कोसाइट्स और दूसरे हैं सिलियोसाइट्स. इसके बाद 39 है, कोलनसाइट्स सिक्रीट कोलेजन फाइबर. अब ये भी अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि कोलेजन फाइबर कौन से सेल से रिलीज होता है? तो कोलनसाइट्स आर द सेल्स विच सिक्रीट कोलेजन फाइबर. नंबर 40, लोफोसाइट्स आर लार्जर दैन कोलनसाइट्स एंड सिक्रीट कोलेजन कि लोफोसाइट्स और कोलनसाइट्स दोनों कोलेजन फाइबर सिक्रीट करती हैं लेकिन लोफोसाइट्स साइज में क्या होते हैं? लार्जर होते हैं एज कंपेयर टू कोलनसाइट्स. नंबर 41, डर्मल कार्टिक्स कंटेन कोलेजन फाइबर कि डर्मल कार्टिक्स के अंदर एक एडिशनल चीज़ जो हमने पढ़नी है वो क्या है कि इसके अंदर क्या मौजूद होती है? कोलेजन फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं. नंबर 42, लोफोसाइट्स एंड कोलनसाइट्स मेंटेन्स द मेसोहाइल. विच सेल्स मेंटेन द मेसोहाइल स्ट्रक्चर? तो इसके लिए दो सेल्स रिस्पॉन्सिबल हैं, एक है लोफोसाइट्स और दूसरे क्या हैं? कोलनसाइट्स कि ये कोलेजन फाइबर सिक्रीट करते हैं और यही कोलेजन फाइबर फिर मेसोहाइल को क्या करता है? मेंटेन करता है. इसके बाद 43 है, ग्लैंड सेल्स सिक्रीट स्लाइम सिक्रीशन कि स्लाइम सिक्रीशन कौन से सेल से रिलीज होती हैं? ग्लैंड सेल से रिलीज होती हैं. नंबर 40, आर्कियोसाइट्स आर कॉल्ड टोटिपोटेंट सेल्स. अब ये भी इम्पॉर्टेंट टर्म जो है पूछी जाती है अक्सर एग्जाम में कि व्हाट आर द टोटिपोटेंट सेल्स इन केस ऑफ फाइलम पोरिफेरा. तो टोटिपोटेंट सेल्स जो फाइलम पोरिफेरा के अंदर प्रेजेंट होते हैं वो क्या कहलाते हैं? आर्कियोसाइट्स. आर्कियोसाइट्स आर द टोटिपोटेंट सेल्स. नंबर 45, टोटिपोटेंट मीन्स विच सेल्स दोज कैन बी ट्रांसफर टू द अदर सेल्स कि टोटिपोटेंट सेल्स ऐसे सेल्स हैं जो कि दूसरे सेल्स के अंदर ट्रांसफ़र हो सकते हैं या दूसरे सेल्स को वो बना सकते हैं. नंबर 46, आर्कियोसाइट्स प्रोड्यूस सेक्स सेल्स एंड हेल्प इन रीजनरेशन कि आर्कियोसाइट्स सेक्स सेल्स प्रोड्यूस करते हैं और इसी तरह ये रीजनरेशन में भी हेल्प करते हैं. नंबर 47, व्हेन फूड पार्टिकल इज ट्रैप्ड इन म्यूकस कि फूड पार्टिकल जो इसके अंदर स्पंजेस की बॉडी के अंदर होता है वो ट्रैप किस में किया जाता है? म्यूकस के अंदर. नंबर 48, हाइट ऑफ ल्यूकोनाइड स्पंज इज़ 10 सेंटीमीटर. ये भी एक इम्पॉर्टेंट है कि ल्यूकोनाइड स्पंज की जो हाइट है वो कितनी होती है? 10 सेंटीमीटर. इन करंट कैनाल्स की टोटल तादाद कितनी होती है? इन करंट कैनाल्स आर 81,000 कि 81,000 इन करंट कैनाल्स होती हैं एक वाटर कैनाल सिस्टम के अंदर. इसके बाद नंबर 50 है, मोर देन 2 मिलियन फ्लैजिलेटेड चैम्बर्स आर प्रेजेंट कि आलमोस्ट 2 मिलियन या इससे भी ज़्यादा के फ्लैजिलेटेड चैम्बर्स प्रेजेंट हैं वाटर कैनाल सिस्टम के अंदर. 51,
डायमीटर ऑफ ल्यूकेनाइड स्पंज इज 1 सेंटीमीटर। तो अब आपने ये दो चीज़ें याद रखनी है कि ल्यूकेनाइड स्पंज की जो हाइट थी वो 10 सेंटीमीटर है, जबकि उसका डायमीटर क्या है, 1 सेंटीमीटर है। नंबर 52, वेलोसिटी ऑफ वाटर इन इनकरंट कैनाल इज़ 0.1 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब ये भी इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम के हवाले से कि इन करंट कैनाल्स के अंदर जो वाटर होता है उसकी वेलोसिटी कितनी होती है, 0.1 सेंटीमीटर पर सेकेंड। इसके बाद नंबर 53 है, वेलोसिटी ऑफ वाटर इन फ्लैजिलेटेड चैम्बर इज़ 0.001 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये भी इम्पॉर्टेंट है कि फ्लैजिलेटेड चैम्बर्स के अंदर वाटर की वेलोसिटी कितनी होती है, वो होती है 0.001 सेंटीमीटर पर सेकेंड। नंबर 54, speed of water on leaving the body of sponge is 8.5 सेंटीमीटर। ये स्पीड भी आपने याद रखनी है। नंबर 55, साइज ऑफ फूड पार्टिकल इज़ बिटवीन 50 माइक्रोमीटर टू 1 माइक्रोमीटर। ये भी है कि वो पार्टिकल जो स्पंजेस इनटेक करते हैं, फूड पार्टिकल, उसका साइज़ कितना होता है, बिटवीन 50 माइक्रोमीटर टू 1 माइक्रोमीटर। इसके बाद है 56, डाइजेशन अकर्स इन आर्कियोसाइट्स। ये भी इम्पॉर्टेंट है कि स्पंजेस के अंदर डाइजेशन कहाँ पे होती है, तो वो आर्कियोसाइट सेल्स के अंदर डाइजेशन होती है। नंबर 57, कंट्रैक्टाइल वैक्यूल इज़ प्रेजेंट इन आर्कियोसाइट्स एज वेल एज कॉनोसाइट्स। कि कंट्रैक्टाइल वैक्यूल कौन से सेल्स के अंदर प्रेजेंट होता है, आर्कियोसाइट्स के अंदर भी प्रेजेंट होता है और ये कॉनोसाइट्स के अंदर भी प्रेजेंट होता है, और ये सिक्रीशन को रिमूव करने में हेल्प करता है। नंबर 58, इंटरनल बडिंग इज़ कॉल्ड एज जेम्यूल। के जो स्पंजेस के अंदर रिप्रोडक्शन होती है वो बडिंग के ज़रिए होती है। जो इंटरनल बड होते हैं उनका दूसरा नाम क्या होता है, जेम्यूल फॉर्मेशन या जेम्यूल। नंबर 59, जेम्यूल आर एबल टू सर्वाइव अनफेवरेबल इन्वायरमेंट्स। के स्पंजेस के अंदर अनफेवरेबल इन्वायरमेंट्स को सर्वाइव करने के लिए क्या चीज़ होती है कि उनके अंदर ये जेम्यूल फॉर्मेशन होती है जो कि अनफेवरेबल इन्वायरमेंट को सर्वाइव करने में हेल्प करती है। नंबर 60, जेम्यूल हैव ओपनिंग एट वन एंड कॉल्ड एज माइक्रोपाइल। के जेम्यूल के अंदर एक साइड पे एक ओपनिंग मौजूद होती है जिसका नाम क्या होता है, माइक्रोपाइल ओपनिंग होता है। नंबर 61, हेलिकोलोना लोसानोफी इज़ अ मैरीन स्पंज विच हैज़ जेम्यूल फार्मेशन। अब ये भी इम्पॉर्टेंट है कि जेम्यूल फार्मेशन किस स्पंज के अंदर होती है, तो उसका नाम भी यहाँ बताया गया है, हेलिकोलोना लोसानोफी इज़ अ मैरीन स्पंज विच हैव जेम्यूल फार्मेशन टू सर्वाइव अनफेवरेबल इन्वायरमेंट। Number 62, amebocytes are modified to form reduction bodies to survive unfavorable environment। इसी तरह से जेम्यूल फार्मेशन के अलावा एक और एडेप्टेशन भी है, वो है रिडक्शन बॉडीज़, जो कि बनती हैं अमेबोसाइट से, और ये रिडक्शन बॉडी भी अनफेवरेबल इन्वायरमेंट को सर्वाइव करने में हेल्प करती है। नंबर 63, स्पंजेस आर मोस्टली मोनोशियस। के स्पंजेस की अगर हम बात करें तो ये क्या होती हैं, मोनोशियस होते हैं, मीन इनमें मेल और फीमेल सेक्स सेल्स जो है एक ही ऑर्गेनिजम्स के अंदर मौजूद होते हैं। इसके बाद नंबर 64 है, क्वानोसाइट्स आर शिफ्टेड इनटू स्पर्म्स। के स्पर्म्स के स्ट्रक्चर से बनते हैं, तो क्वानोसाइट्स इटसेल्व्स आर कन्वर्टेड इनटू स्पर्म्स। नंबर 65, इन मोस्ट डेमोस्पंजी एग्स आर फॉर्म्ड बाय आर्कियोसाइट्स। अब ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि डेमोस्पंजी जो क्लास है उसके अंदर जो एग्स बनते हैं वो कौन से सेल से बनते हैं, आर्कियोसाइट्स सेल्स फॉर्म्स द एग्स इन केस ऑफ डेस्मोस्पंजी या डीमोस्पंजी। Question 66, sex cells are produced by archaeocytes as well as conocytes। कि सेक्स सेल्स होते हैं वो सिर्फ आर्कियोसाइट्स नहीं बल्कि कॉनोसाइट्स भी प्रोड्यूस करते हैं, क्योंकि ऊपर ही हम पढ़ चुके हैं कि कॉनोसाइट्स इटसेल्फ आर कन्वर्टेड इनटू स्पर्म्स। तो इट्स मीन कॉनोसाइट्स भी क्या हैं, सेक्स सेल्स को प्रोड्यूस करने में इन्वॉल्व हैं। नंबर 67, इन क्लास कैलकेरियाई एग्स इज़ फॉर्म्ड बाय कॉनोसाइट्स। अब ये आपने डिफरेंस याद रखना है कि क्लास डेमोस्पंजी के अंदर जो एग्स बने थे वो बने थे आर्कियोसाइट्स के अंदर, और क्लास कैलकेरिया के अंदर जो एग्स बनते हैं वो किससे बनते हैं, कॉनोसाइट से मिलकर बनते हैं। नंबर 68,
क्वानोसाइट्स आर कैरियर्स ऑफ स्पर्म्स टुवर्ड्स मीजोहाइल के क्वानोसाइट्स एक तो खुद स्पर्म में कन्वर्ट हो जाती हैं और बाकी रिमेनिंग क्वानोसाइट्स स्पर्म को कैरी करती हैं किसकी तरफ, टुवर्ड्स मीजोहाइल। Number 69. In internal fertilization, sperm is released by excrement water. Number 70. In internal fertilization, sperm is enters by incurrent water. कि sperm इंटर होते हैं इनकरेंट वाटर में, लेकिन रिलीज कहाँ से की जाती हैं, एक्सकरेंट वाटर से। नंबर 71. मोस्ट स्पंजेस आर विविपेरुअस हैविंग क्रॉस फर्टिलाइजेशन। अब ये भी इंपॉर्टेंट है कि स्पंजेस के अंदर जो मोड ऑफ डेवलपमेंट क्या है कि वो विविपेरुअस हैं और इनके अंदर फर्टिलाइजेशन भी कौन सी होती है, क्रॉस फर्टिलाइजेशन होती है। नंबर 72. स्पंजेस हैव पैरेन्काइमुला लार्वा एंड एम्फीब्लास्टुला लार्वा। अब ये भी है कि फाइलम पोरीफेरा के अंदर या स्पंजेस के अंदर कौन सा लार्वा प्रेजेंट है, तो इसके अंदर दो लार्वे हैं, एक पैरेन्काइमुला लार्वा है और दूसरा एम्फीब्लास्टुला लार्वा है। नंबर 73. पैरेन्काइमुला लार्वा हैव सिमिलर शेप टू द प्लेनुलर लार्वा ऑफ नाइडेरियन। ये भी इंपॉर्टेंट है कि पैरेन्काइमुला लार्वा की शेप किस लार्वा से मिलती है, तो वो नाइडेरियन का जो लार्वा प्लेनुलर लार्वा है उससे सिमिलर ये शेप रखता है। नंबर 74. पैरेन्काइमुला लार्वा कंटेन अमीबोसाइट्स एंड फ्लैजिलेटेड सेल्स। कि पैरेन्काइमुला लार्वा के अंदर दो सेल्स जो हैं वो कौन से होते हैं, एक तो अमीबोसाइट्स उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं और दूसरे सेल्स का नाम क्या है, फ्लैजिलेटेड सेल्स। तो ये भी आपने याद रखना है। नंबर 75. एम्फीब्लास्टुला लार्वा कंटेन लार्ज सेल्स नॉन एज मैक्रोमेयर। ये भी इम्पॉर्टेंट है कि मैक्रोमेयर सेल्स किसके अंदर, कौन से लार्वे के अंदर प्रेजेंट होती हैं, तो एम्फीब्लास्टुला लार्वा है जिसके अंदर लार्ज नंबर ऑफ सेल्स होती हैं जिन्हें मैक्रोमेयर्स कहते हैं। स्मॉलर सेल्स ऑफ एम्फीब्लास्टुला का लार्वा कॉल्ड एज माइक्रोमेयर। के माइक्रोमेयर स्मॉलर सेल्स और मैक्रोमेयर लार्जर सेल्स हैं। नंबर 77. माइक्रोमेयर्स आर फ्लैजिलेटेड सेल्स। अब ये इंपॉर्टेंट है कि माइक्रोमेयर की अगर हम कंपोजिशन देखें तो माइक्रोमेयर्स आर एक्चुअली मेड ऑफ फ्लैजिलेटेड सेल्स। नंबर 78. नॉन फ्लैजिलेटेड मैक्रोमेयर गिव्स राइज टू पिनेकोसाइट्स एज वेल एज स्क्लेरोसाइट्स। अब ये भी इंपॉर्टेंट है कि जो मैक्रोमेयर इसमें बनते हैं, एक तो वो नॉन फ्लैजिलेटेड होते हैं, दूसरा क्या है कि वो पिनेकोसाइट्स को और स्क्लेरोसाइट सेल्स को बनाते हैं। नंबर 80. माइक्रोमेयर्स गिव्स राइज टू क्वानोसाइट्स, आर्कियोसाइट्स एज वेल एज कोलनसाइट्स। अब इन दोनों के फंक्शन आपने इंपॉर्टेंट है और ये याद रखने हैं कि जो माइक्रोमेयर है वो क्वानोसाइट्स, आर्कियोसाइट्स एज वेल एज कोलनसाइट्स इन सेल्स को बनाता है, जबकि अगर हम बात करें मैक्रोमेयर की तो वो पिनेकोसाइट्स को और स्क्लेरोसाइट्स को बनाता है। नंबर 81. इन इनकम्प्लीट इंडिविजुअल इज़ फॉर्म्ड इन रीजनरेशन प्रोसेस। के स्पंजेस के अंदर जो रीजनरेशन होती है तो उसमें जो इंडिविजुअल बनता है वो कम्प्लीटली फंक्शनल नहीं होता बल्कि इनकम्प्लीट इंडिविजुअल। नंबर 82. क्लास एग्जैक्टिनिलिडा कंटेन यूप्लेक्टिला। के यूप्लेक्टिला क्लास एग्जैक्टिनिलिडा का मेंबर है। यूप्लेक्टिला इज़ आल्सो नॉन एज वेनस फ्लावर बास्केट एंड इट इज़ गिवन एज ए ब्राइडल गिफ्ट इन जापान। नंबर 83. क्लास एग्जैक्टिनिलिडा कंटेन ग्लास स्पंज। के एग्जैक्टिनिलिडा के अंदर दूसरा मेंबर जो है वो ग्लास स्पंज है। ग्लास स्पंज का साइंटिफिक नेम हायालोनीमा है। नंबर 84. क्लास एग्जैक्टिनिलिडा कंटेन साइकोनाइड और ल्यूकोनाइड टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम। ये भी इंपॉर्टेंट है कि क्लास एग्जैक्टिनिलिडा के अंदर कौन सा वाटर कैनाल सिस्टम प्रेजेंट होता है, साइकोनाइड और ल्यूकोनाइड टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम। नंबर 85. एग्जाम्पल ऑफ क्लास कल्केरियाई इज़ साइकोन। तो साइकोन जो है वो एग्जाम्पल है क्लास कल्केरियाई की। 86 है एग्जाम्पल ऑफ क्लास डेमोस्पॉन्जी इज़ स्पॉन्जिला एज वेल एज कोलियोना। तो ये दो मेंबर हैं क्लास डेमोस्पॉन्जी के अंदर प्रेजेंट हैं। नंबर 87. फ्रेश वाटर स्पॉन्ज इज़ स्पॉन्जिला। कि फ्रेश वाटर स्पॉन्ज का नाम क्या है, स्पॉन्जिला है। नंबर 89. मैरिन स्पॉन्ज इज़ नॉन एज कोलियोना। कि कोलियोना को मैरिन स्पॉन्ज कहते हैं और कोलियोना इज़ आल्सो नॉन एज बोरिंग स्पंज। नंबर 89. क्वानोफ्लैजिलेट्स एंड स्पंजेस फॉर्म सिस्टर ग्रुप। तो ये भी है कि इनमें विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म सिस्टर ग्रुप, और उसमें एक ऑप्शन आपको ये भी दिया जा सकता है क्वानोसाइट्स एंड
स्पंजेस। तो स्पंजेस का और कॉनोफ्लैजिलेट्स जो कि नाइडेरियन है, उनका क्या होता है, आपस में एक सिस्टर ग्रुप बना होता है। नंबर 90, यूमेटाजोआ एंड स्पंजेस आल्सो फॉर्म सिस्टर ग्रुप। और यूमेटाजोआ और स्पंजेस भी क्या है, आपस में एक सिस्टर ग्रुप बनाते हैं। तो ये थे 19 इम्पॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक्स अबाउट फाइलम पोरिफेरा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही मौजूद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि इस तरह की वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आगे भी मिलता रहे।